Hello, 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 dear students. Very, very, very good morning, all of you. Welcome to VSmart Academy, and we are here to cater CA Foundation. And yes, we have to crack CA Foundation, and I take the responsibility of the subject BCK and business economics. Okay, so guys, yes, we have covered a fair bit of ground in the very first chapter of BCK, that is BCK introduction. Under this chapter, we have covered something. We covered the domains of BCK. Can you help me with the domains of BCK, guys? Tell me. It's vast, eclectic, Perfect. ever evolving, and Perfect. BCK is vast, BCK is eclectic, and it's ever evolving and ever expanding. Okay. Can you tell me where the word strategy has been derived from? military, Can you tell me where the word bulls and bear are derived from? biology, Biology, animal psychology. In the last lecture, we catered the importance of BCK for chartered accountants. Basically, we are the custodians of our country's resources, and it's our responsibility to make sure that we have in place a fair and credible system for accounting and reporting, so that we make the society understand how those resources are being deployed and how those resources are being utilized. Okay, so guys, who are we? We are the custodians. As a chartered accountant, हमारे syllabus में we have costing, we have finance, we have management subjects, we have laws. So this is where our concepts related to cost, profit, revenue, inventory are really good. And this is where we will be able, we are rather the best people to understand the financial statements. Okay, so guys, हमें जब financial statements अच्छे से समझ में आते हैं तो हमें financial statements की गलतियां भी अच्छे से समझ में आएगी, and that's why we are very much capable to do the audit. But we have been empowered to do the financials audit. We have to do the audit very diligently. Okay, so then we studied how to enhance a BCK. We have to be assured that business is all around us. Non-commerce background is not a handicap. Observation and experience are the best guides. So guys, Sir Rudyard Kipling, he gave us 6 honest servants. What are those? who were करेक्ट. कुछ मिस हो जाता है लेकिन इसमें इसका स्टिकी नोट जरूर बना लेना. वेयर, व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ एंड हु. Okay, or other sources for enhancing BCK? Tell me. Business news, yeah, business news. Then we have business magazines and channels, and 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 business channels. So don't say only magazines. Okay, okay. Then we have studied the economic and non-economic activities. We have rather classified all these activities. Guys, हमें किस में interest है? Economic या non-economic? Tell me. economic, Of course, studying BCK, studying business, studying commerce, we are, हम ये नहीं कहते नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज काम की नहीं है. हमारे सब्जेक्ट का ओरिएंटेशन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज पढ़ने का नहीं है, वो आप ह्यूमैनिटीज लेके पढ़ लेना. सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज? द वेरी फर्स्ट वन, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर income generating, income generating. Economic activities are productive. Even consumption is an economic activity. Also, whatever you have earned, you have to save. You do not have to shell everything out. You have to save, but you don't have to just save. You have to invest, and you have to create your wealth. So this is what we have studied. Can you tell me the various factors of production? Uh-huh. land labor, Land, labor, capital, and entrepreneurship. Land, how does this factor of production earn money? What is the source of income? rent, Correct. For land, it's the rent. For labor, what is it? salaries and Salaries wages, and wages. For capital, what is the source of earning money? interest, And for entrepreneur, profit, perfect. So हमें हमें ये चीजें चाहिए, इसलिए एप्पल ये चीजें बनाएगा. सो बेसिकली consumption is also an economic activity. Rather, consumption represents the demand side of the market, and production represents the, bolo, supply, perfect. Production represents the supply side. Savings and unspent income comprises of saving. और हमें ये पैसे तिजोरी में रखने हैं, राइट? और yes, तिजोरी में ये पैसे क्या देंगे?
बच्चे देंगे, है ना, बच्चे देंगे ना, ये तिजोरी में रख के ये डिफ्लेट हो जाएंगे, इन्फ्लेशन के चलते इनकी वैल्यू कम हो जाएगी. वी हैव टू give this money, we have to invest this money to the corporates who are looking for money. Reliance, Tata's, various startups, invest it, and then it will help to grow our economy, it will help us to grow infrastructure and other productive pursuits. So that is how it is. So this is what we studied more or less, followed by business. Is it an economic activity? Of course. Yes. Okay, and when we talk about business, we do that production or whatever we do for sustenance level, right? We do it for sustenance level, right? We do it for the commercialization. Whatever we do market oriented, market driven production करना पड़ेगा. ये एक एक दो दो यूनिट्स बेच के कुछ नहीं होना जाना है. The beautiful example is this. What is this? One of the prominent examples which did market oriented production is, yes guys, अमूल. ओके, इन्होंने बनाया एक एक सिंगल एनिमल हस्बेंड्री या फिर फार्मर को सबको क्यूमुलेटिवली मार्केटिंग करने में मदद करी, एंड वी हैव द ब्रांड अमूल. सो गाइस, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. देयर आर 3 tiers of business. What are those? Can you help me with the tiers of business? Oh, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड सर्विसेज. ठीक है, बेसिकली पढ़ाई करी, जस्ट हैव अ ग्लांस एट इट एंड इट हमें आने लग जाता है, बट विदाउट नॉलेज आई एम अफ्रेड यू विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस इट. यू आर द परफेक्ट एग्जांपल. कल की क्लास में आपको ये नहीं आ रहा था, लेकिन आज आ रहा है. ठीक है, मुंह उठा के जवाब दे रहे हो आज. कैसे पॉसिबल हुआ ये? बिकॉज यू हैव गॉन थ्रू इट. अंडरस्टैंड दिस. Trust me on this. BCK Eco में just watching the lectures and just having a glance every day for half an hour should solve your purpose. All right, and then we studied how to read the business news and all. All right, so we have studied Q4 and all. What is Q4, by the way? Quarter 4. Perfect. So let's study this. थोड़ा सा crucial है ये आज का discussion. Distinguishing characteristics of a business vis-a-vis other economic operation. What do you mean by vis-a-vis? Any clue? No? No? Rasika, what is vis-a-vis? Mainly. Abhi? Namely. Okay. Abhishek? No clue? Vis-a-vis means in comparison with. Okay? Alright, so guys, हम लोग यहां पे ज्यादा डिस्कशन बिजनेस का करने वाले हैं, लेकिन कंपेयर हमको तीनों को करना पड़ेगा. सो गाइस, व्हाइल बिजनेस एज एन इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन इज वास्टली डाइवर्स, येट ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन, मोर सो अर्बन एजुकेटेड पॉपुलेशन, एंगेजेस इन इट. सो बिजनेस हर कोई नहीं करना चाहता. अगर आप इंडिया में देखोगे तो बहुत कम लोग बिजनेस करना चाहते हैं, सब लोग जॉब ही ढूंढ रहे हैं. एम आई राइट गाइस? हम नहीं सोच रहे कि हम स्टार्टअप करेंगे, हम नहीं सोच रहे, हमको नहीं लेनी वो, हम में नहीं है वो एंटरप्रेन्योर एंडीवर, है ही नहीं हम तो सबको जॉब करनी है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ऑल ऑफ यू आर परसुइंग सीए, ओनली अ स्मॉल परसेंटेज इज गोइंग टू स्टार्ट अ बिजनेस. इट इज इन राइटिंग बिकॉज इट इज अ फैक्ट. सिंस सीए इज अ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, most likely you are going to practice as an independent professional or would take up a paid employment somewhere. या तो आप इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल बनोगे, या तो आप एज अ पेड एम्प्लॉयमेंट आप कहीं ना कहीं आप एड अप हो जाओगे. इंडिपेंडेंट प्रोफेशन है, क्या करोगे आप? क्या करोगे? करेक्ट. डॉक्टर्स क्या करते हैं? डॉक्टर्स प्रैक्टिस करते हैं. यानी हम जाते हैं डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर साहब हमारा किडनी में दर्द हो रहा है, फिर डॉक्टर साहब तुमको दवाई लिख के देते हैं, एंड दैट इज हाउ इट वर्क्स. Am I right? किडनी यही है, कहां है किडनी? एनीवे, सो या तो हम एम्प्लॉयमेंट में जाएंगे, जॉब में जाएंगे, या तो फिर हम लोग एक प्रैक्टिस करेंगे. बिजनेस इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर. इसी को हमने डिटेल में समझना है आज. एम्प्लॉयमेंट का डिस्कशन करते हैं. एम्प्लॉयमेंट इज व्हाट? इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस बिटवीन एन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर. द कॉन्ट्रैक्ट एलॉबरेट्स जेडी. जेडी यानी क्या? जॉब डिस्क्रिप्शन. ठीक है, यानी ये वर्ड आपके लिए शायद नया हो, लेकिन जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे तो आपके लिए ये बार बार जॉब के इसमें हमेशा कहेंगे वो लोग, जेडी क्या है? जेडी यानी जॉब डिस्क्रिप्शन, यानी आपको क्या रोल है या आपका इस जॉब में क्या रोल होगा, ये डिस्कस किया जाता है जेडी में.
and periodic compensation known as salaries or wages. It denotes, wages denotes factory workers, salary denotes office staff, managers, etc. One has to undergo a detailed process of recruitment selection for one's engagement in employment. क्यों डिटेल होना चाहिए, क्यों प्रोसेस सही होना चाहिए, किसी को जॉब मिलने के लिए क्यों प्रोसेस के थ्रू गुजरना चाहिए, क्या कहते हो? किसी को कुछ भी जॉब दे दो, बोलो। जैसे आप अभी आगे जब सीए में पढ़ोगे तो रसिका टेल मी, आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के कौन सी एरिया ऑफ एक्टिविटी में इंटरेस्ट है, इफ यू हैव सम वेयर अबाउट्स अबाउट इट? Accounts. राइट, आपको अकाउंट्स अच्छा लगता है, आपको अकाउंट्स में जॉब करनी है। अब एक अकाउंट्स जिसको पसंद है, जिसको अकाउंट्स में जॉब करने का मन है, उससे अगर आप टैक्सेशन में धकेल दोगे तो आई डोंट थिंक ही और शी विल बी कंफर्टेबल, क्या कहते हो? That's why there should be a detailed process of recruitment. और जो भी आपको जॉब करनी है उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, प्रोफेशनल और वर्क एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड। फ्रेशर्स, जो नए नए लोग जो क्वालिफाई होते हैं, फ्रेशर्स आर इनिशियली रिक्रूटेड एज इंटर्न्स। इंटर्नशिप आपने सुना होगा, सीए में इंटर्नशिप नहीं होती, सीए में आर्टिकलशिप होती है, ठीक है। इंटर्न्स बनाते हैं उनको एंड रिक्वायर्ड टू अंडरगो ट्रेनिंग एंड वन इज एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड परफॉर्मेंस टारगेट असाइन फ्रॉम टाइम टू टाइम। देयर इज मिनिमम अश्योर्ड इनकम, जॉब में एक अच्छी बात है, मिनिमम अश्योर्ड इनकम, टेन्योर सर्टेनिटी, रीजनेबल अपॉर्चुनिटीज फॉर करियर और प्रोग्रेशन वाया प्रमोशन। तो एक अच्छी बात होती है कि इन एम्प्लॉयमेंट, इन जॉब यू ग्रो। ऐसा नहीं है कि आप ग्रो नहीं करते, समय के साथ आपको अश्योर्ड इनकम भी मिलती है, टेन्योर सर्टेनिटी होती है। बिजनेस में सर्टेनिटी बहुत कम होती है, कल कोई बिजनेस था, हो सकता है आज वो बिजनेस हो ही ना, हो सकता है गवर्नमेंट आपके प्रोडक्ट को ही बैन कर दे, यू नेवर नो। एनी विच वेज, चार्टर्ड अकाउंटेंट जनरली दे लुक फॉर जॉब्स इनटू बिग फोर, डेलॉइट्स, अर्नस्ट एंड यंग, प्राइसवाटरहाउसकूपर्स एंड केपीएमजी। यहां पे मैं चाहता हूं मेरे स्टूडेंट्स यहां आर्टिकलशिप एंड ऑल करें, जॉब तो काफी लोग करते ही है। Then next option is profession. प्रैक्टिस में चले जाएंगे हम लोग, यार इतनी सारी पढ़ाई करते हैं, हमें फाइनेंस आता है, हमें टैक्स आता है, हमें कॉस्टिंग आता है, व्हाट नॉट, ऑल दोस थिंग्स। सो गाइस, व्हेन यू टॉक अबाउट प्रोफेशनल, इट्स अ रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज ऑफ स्पेशलाइज्ड नेचर नेसेसिटेटिंग प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन। जैसे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं तो आप मेरे पास अपने किडनी का दर्द लेके आएंगे, है ना? अरे नहीं सर, ऐसा थोड़ी ना होता है, ठीक है। किडनी के दर्द के लिए कौन से डॉक्टर के पास जाएंगे हम, बताओ? बोलो बोलो बोलो, किडनी के दर्द के लिए कौन से डॉक्टर के पास जाएंगे? अच्छा एक मिनट, इजी वाला पूछो सर। हार्ट 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 पेन के लिए कौन से डॉक्टर के पास जाएंगे? Cardiologist. कार्डियोलॉजिस्ट। वैसे ही किडनी के दर्द के लिए नेफ्रोलॉजिस्ट। सो यू नो स्पेशलाइज्ड क्वालिफिकेशंस होती है जब व्हेन इट कम्स टू प्रोफेशन, स्पेशलाइज्ड नेचर की सर्विसेज होती है। यानी आपको किडनी में इश्यू है तो आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाके कोई फायदा नहीं है, या नॉर्मल एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाके कोई फायदा नहीं है। सो आपके लिए स्पेशलाइज्ड नेचर में रहेगा प्रोफेशन, उसके लिए प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशंस रहेगी। आपको सीओपी लेना पड़ेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद आप डायरेक्टली प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, आपको लेना पड़ेगा सीओपी। सर मुझे प्रैक्टिस नहीं करनी है, मुझे जॉब करना है, तो आपको लेना पड़ेगा सीओएम, बस सीओएम, सर्टिफिकेट ऑफ मेंबरशिप from established certification, accreditation and examination and assessment body that also imposes a code of conduct. Oh, code of conduct. हम स्कूल में कैसे चलते थे? स्कूल में ऐसे एकदम ऐसे, हाँ ऐसे चलते थे मवाली जैसे, बोलो कैसे चलते थे स्कूल में? What was your demeanor at school? How did you walk? स्कूल कॉरिडोर में अगर घूमना है तो कैसे घूमते थे, बताओ? Properly, hands at the back, walking straight. Am I right? स्कूल में अगर पीरियड भी ऑफ है तो हम लोग मस्ती नहीं करते थे, हेड डाउन करके बैठ जाते थे। Am I right? क्या था ये? कोड ऑफ कंडक्ट फॉर स्कूल, कोड ऑफ कंडक्ट फॉर बॉयज विल नॉट अग्री, कोड ऑफ कंडक्ट एट स्कूल। वैसे ही चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर हम लोग बन जाते हैं तो एक प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट होता है, ठीक है। जैसे आपको, आप क्या नहीं कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपके सीए के ऑफिस का बोर्ड कैसे होगा एंड ऑल, हर चीज प्रिस्क्राइब करता है हमें आईसीआई। प्रोफेशंस कैन बी परस्यूड एज इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस, कैन बी परस्यूड एज इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस और अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू।
सो अगर हम लोग देखें तो जनरली जो होते हैं प्रोफेशंस, ये सारे प्रोफेशंस बहुत ही कॉमन है. डॉक्टर, हु इज ही? Profession. Lawyer, yeah, correct. And the last one, what is this? Architect. Architect. So when we talk about practice, accountancy, architecture, designing, engineering, law, medicine, and even management are assuming the attributes of a profession. In certain profession, medicine, if an employment, the professionals are entitled to non-practicing allowance as well. So guys, non-practicing allowance उनको मिलता है. जैसे मैं डॉक्टर हूं और अगर मैं वॉकहार्ट में अगर जॉब कर रहा हूं, तो वॉकहार्ट वाले कहते हैं कि एक काम करो, पूरा जॉब आप हमारे यहीं करो, आप खुद का प्रैक्टिस मत करो, और उसके बदले में हम आपको 1 लाख रुपीस पर मंथ और दे देंगे. इसको कहते हैं नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस. Okay, so the word profession or professional is in common parlance is used to distinguish from one's amateurish or substandard performance. जो एकदम नौसीखिए होते हैं, जो नए बंदे होते हैं, उनको अमेच्योर कहते हैं. ठीक है, जब हम प्रोफेशनल्स की बात करते हैं तो हम हॉबी नहीं कर रहे हैं यहां पे. वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सपर्टीज. Professionalism is often associated with perfectionism. The word is used derogatively. Negatively use होता है word that one greedily works for money. तो जब भी हम लोग प्रोफेशनल्स की बात करते हैं ना, तो जैसे ही वर्ड आ जाता है प्रोफेशनल, तो थोड़ा बहुत जो लोगों का पर्सपेक्टिव जो होता है प्रोफेशनल्स की तरफ, ठीक है, वो ऐसा होता है कि प्रोफेशनल्स इन जनरल ग्रीडीली वर्क फॉर मनी. प्रोफेशनल्स ऐसा, प्रोफेशनल बोल दिया तो ये वर्ड आ जाता है. One greedily works for money. Historically, however, professions emerge in the pursuit of nobility, demonstrated highest level of integrity, ethics, and were held in high esteem and social status. Chartered accountants, for example, represent a noble profession for ensuring truthfulness and fairness in the conduct of business, and hence they are instrumental in ensuring trustworthiness and hence the integrity of the entire economic system. तो हम जिस ऑडिट रिपोर्ट पे साइन करते हैं, ये अज्यूम किया जाता है कि इसमें हाईएस्ट स्टैंडर्ड यूज हुआ है और ये सब सच है, ऐसा अज्यूम किया जाता है. ऑलराइट, द लोगो ऑफ ICAI. आहा, सो इसमें which living creature is shown? Eagle. करेक्ट, इट्स अ बर्ड, इट्स एन ईगल. और ईगल की खास बात क्या होती है, बोलो क्या खास बात होती है ईगल की, बताओ. It can focus so well that it can pounce on its prey even from the air and can get it from water. इतना हाई लेवल ऑफ फोकस होता है इनका. गाइस, ये ईगल, द लोगो ऑफ ICAI इज सजेस्टिव ऑफ विजिलेंस, हाई लेवल ऑफ फोकस एक्सपेक्टेड फ्रॉम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. ओके, सो गाइस, ये जो लोगो है, दैट बर्ड इन देयर स्टैंड्स फॉर विजिलेंस. ओके, याद रहेगा ये. सो गाइस, ये था जनरल डिस्कशन एम्प्लॉयमेंट का और प्रोफेशन का. अब बिजनेस को, एम्प्लॉयमेंट को और प्रोफेशन को, तीनों को कंपेयर कर लेते हैं. ओके, सो गाइस वी हैव टू डिस्टिंग्विश, वी हैव टू डिस्टिंग बिटवीन बिजनेसेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. लेट्स स्टार्ट विद बिजनेस. बिजनेस में हम क्या कर सकते हैं सर? कुछ भी कर सकते हैं हम लोग बिजनेस में. एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ मार्केट ओरिएंटेड एक्टिविटीज कमिंग अंडर इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स. हर चीज, कुछ भी कर सकते हैं हम लोग. हम सर्विसेज दे सकते हैं बिजनेस में, हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, हम एरोप्लेन्स बेच सकते हैं, हम सिम कार्ड बेच सकते हैं, ठीक है, हम टेबल बेच सकते हैं, हम कचरा बेच सकते हैं. यू एवरीथिंग अंडर द सन यू कैन डू. एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ मार्केट ओरिएंटेड एक्टिविटीज यू कैन डू. प्रोफेशन में independent rendering of services of specialized nature based upon prescribed qualifications under the aegis of professional body. अगर मैंने डॉक्टर बनना है तो कौन सी प्रोफेशनल बॉडी है बताओ जो मुझे मैनेज करेगी? मैंने अगर डॉक्टर बन गया मैं, IMA. और बताओ, अगर मैं डॉक्टर बन गया तो कौन सी प्रोफेशनल बॉडी? जैसे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बना तो प्रोफेशनल है, तो मैं इंडिपेंडेंटली सर्विस दूंगा, तो मुझे रेगुलेट कौन करता है? ICAI. वैसे ही अगर मैं डॉक्टर बन गया तो कौन रेगुलेट करता है? देखो कबीर सिंह
करेक्ट। ठीक है, कबीर सिंह अगर आपने मूवी देखी होगी तो उसमें वो शराब पी के एक पेशेंट का ट्रीटमेंट करता है, तो उसके ऊपर इंक्वायरी होती है, एम आई राइट? एमसीआई है डॉक्टर्स के लिए इंडिया में, है एमसीआई, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए इंडिया में कौन है, विच इज द प्रोफेशनल बॉडी जिसके एजेस में हम आते हैं, आईसीआई। कंपनी सेक्रेटरी के लिए कौन सी बॉडी है, ICS. आईसीएसआई। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटेंट्स के लिए कौन सी बॉडी है, आईसीएमए। करेक्ट करेक्ट। सो गाइस इंडिपेंडेंटली सर्विस देते हैं स्पेशलाइज नेचर के, लेकिन इट इज प्रिस्क्राइब कोड ऑफ कंडक्ट एंड ऑल, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस क्या होगी, ये सबको एक प्रोफेशनल बॉडी देगी। एम्प्लॉयमेंट, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर वेजेस और सैलरीज, also called as wage employment. So guys, that's easy. Mode of establishment, entrepreneur's decision and other legal formalities if necessary. entrepreneur का डिसीजन रहेगा कि करना क्या है, कैसे बनाना है। प्रोफेशन, मेंबरशिप लेनी पड़ेगी आपको, अगर प्रोफेशन में उतरना है तो आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, मेंबरशिप ऑफ अ प्रोफेशनल बॉडी, एंड सीओपी, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। सीए की आपको प्रैक्टिस करनी है, तो बिना सीओपी की आप नहीं काम कर पाओगे। उसके बाद लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट एंड सर्विस अग्रीमेंट। जॉब अगर आपको करनी है तो आपको लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट लगेगा और आपको सर्विस अग्रीमेंट की जरूरत पड़ेगी। सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, इट इज डन फॉर, बिजनेस इज डन फॉर, एंड बिजनेस का जो सोर्स है वो पैसे कमाने का, वो है प्रॉफिट। प्रोफेशन में यू गेट प्रोफेशनल फीस, एंड टेल मी सोर्स ऑफ लाइवलीहुड अंडर जॉब, अंडर एम्प्लॉयमेंट, व्हाट इज इट? करेक्ट, वेजेस और सैलरीज। वेजेस और सैलरीज में डिफरेंस है ना? व्हाट्स द डिफरेंस, व्हाट्स द डिफरेंस? डेली बेसिस पे मिलता है, सैलरी मंथली बेसिस। करेक्ट, ठीक है। जो स्किल्ड एम्प्लॉइज होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं थोड़े बहुत, ठीक है, जो ऑफिस और एडमिन वर्क करते हैं, उनको सैलरीज मिलती हैं। और जो जो रॉ लेवल पे फील्ड वर्क करते हैं, जिनको हफ्ते में पैसे मिल जाते हैं, डेली बेसिस पे पैसे मिल जाते हैं, उनको वेजेस कहा जाता है। एनीवे, बिजनेस करना है, प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशंस। बिजनेस करना है, कोई प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन नहीं है, जो करना है करो, कोई पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स तुम पढ़े लिखे हो तो आपको एक एडेड एडवांटेज मिल जाएगा। प्रोफेशन में, अगर आपको प्रोफेशन में अगर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंसी की प्रैक्टिस करनी है, तो मैं बीकॉम होकर चार्टर्ड अकाउंटेंट की प्रैक्टिस कर पाऊंगा क्या? मैं कर पाऊंगा ऑडिट रिपोर्ट साइन? स्ट्रिक्टली प्रिस्क्राइब्ड होती है। और जॉब में मिनिमम क्वालिफिकेशंस फॉर ईच टाइप ऑफ जॉब। अगर आपको एक अच्छा अकाउंटेंट बनना है, any company is looking for an accountant, कोई प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन होगी, कुछ चेक करेंगे, कौन सी डिग्री? तुम किसी अकाउंटेंट को हायर कर रहे हो अपनी कंपनी के लिए, तो क्या क्वालिफिकेशन डिमांड करोगे बताओ? CA. अकाउंटिंग के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट रसिका बीकॉम है, एमकॉम है, तो बहुत ही बढ़िया, राइट? चार्टर्ड अकाउंटेंट वुड बी एन ओवर क्वालिफिकेशन फॉर जस्ट डूइंग अकाउंटिंग वर्क, एम आई राइट? Okay. Yeah. देन एथिकल गाइडेंस, एथिक्स क्या फॉलो करेंगे? सर बिजनेस में जो मालिक बोलेगा, जो मालिक की वैल्यू है वही हमारी वैल्यू है, ठीक है। प्रोफेशन में द इंस्टीट्यूट्स, द रेगुलेटरी बॉडी दैट यू हैव ओवर यू, दे विल प्रोवाइड द प्रोफेशनल कोड्स। एंड एम्प्लॉयमेंट में जो एम्प्लॉयर बोलेगा, दैट विल बी द कोड ऑफ कंडक्ट कि आपको क्या करना है। इन्वेस्टमेंट, बिजनेस में एक ही प्रॉब्लम है, जैसे कोई भी स्टार्टअप है तो सब स्टार्टअप वाले चले जाते हैं शार्क टैंक, क्यों? वहां से पैसे मिलते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए आपको लगेगा सब्सटैंशियल रिक्वायरमेंट, आपको बहुत पैसे लगेंगे। अगर सिर्फ प्रैक्टिस करनी है तो कुछ नहीं, ऑफिस लगेगा, क्लिनिक लगेगा, चेंबर लगेगा, इन तीनों में से कुछ एक। बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, हैवी रिक्वायरमेंट नहीं है फंड्स की। एंड इन्वेस्टमेंट जॉब में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, एक अच्छी बात है। सो गाइस, ये जो हम लोग डिफरेंस पढ़ रहे हैं, इससे आपको हेल्प होगी ये समझने में कि कल जाके, यानी मैंने बिजनेस में जाना है तो मुझे पैसे लगेंगे, जी हाँ, सब्सटैंशियल पैसे लगेंगे, ठीक है। और क्या मुझे क्वालिफिकेशन लगेगी? नहीं लगेगी, ठीक है। लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं है तो ठीक है, ऑफिस से लायक पैसे, हाँ इतने पैसे है, तो फिर आपके पास डिग्री है, उस डिग्री का यूज करो, प्रोफेशन में आ जाओ। तो गाइस, दिस विल हेल्प यू टू कार्व आउट योर करियर। टू बी ऑनेस्ट, बीसीके का सिलेबस, स्पेसिफिकली दिस पार्ट इज वेरी 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 गुड। इससे ये होता है कि स्टूडेंट को पता रहता है, या पता चलने का एक जरिया उनके पास अब मिल गया है कि मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के करना क्या है। लाइक
हम लोग इंटर तक पहुंच गए थे, लेकिन हमको ये नहीं पता था कि हमारे पास ऑप्शंस कौन से हैं। हम लोग वी विल फुल्ली underplanned for our future. Anyways, इन्वेस्टमेंट के बाद पर्सनल ऑटोनॉमी. व्हाट डू मीन बाय द वर्ड ऑटोनॉमी? ऑटोनॉमी यानी फ्रीडम, इंडिपेंडेंस. बिजनेस में बहुत इंडिपेंडेंस होती है. जैसे जॉब में हम कभी भी छुट्टी ले सकते हैं क्या? बोलो. No. नो, जॉब में हम कभी भी छुट्टी नहीं ले सकते. लेकिन अगर हमारा बिजनेस है, यू आर योर ओन बॉस. सबसे ज्यादा फ्रीडम यही है. थोड़ी सी फ्रीडम है प्रोफेशनल में, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट्स काइंड ऑफ बिजनेस ओनली. सो थोड़ी बहुत फ्रीडम यहां भी है, लेकिन जो ड्यू डेट्स वगैरह होती है उसको तो आपको मीट करके अपने क्लाइंट का कंप्लायंस करना ही पड़ता है. लेकिन फिर भी काफी होती है. जॉब में कोई इंडिपेंडेंस नहीं. तो गाइस देखो, आप हर जगह कोई ना कोई फायदा है, हर जगह कोई ना कोई प्रोज एंड कॉन्स जरूर मिलेगा आपको. एम्प्लॉयमेंट में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, लेकिन आपको इंडिपेंडेंस भी नहीं मिलेगी. आप समझ रहे हो? सो देर आर इफ्स एंड बट्स, प्रोज एंड कॉन्स फॉर एवरीथिंग. देन पॉपुलर साइकोलॉजिकल मोटिव. क्यों करते हैं हम लोग? कोई भी अगर बिजनेस करेगा तो क्यों करेगा? बिजनेस करते हैं इकोनॉमिक अचीवमेंट के लिए. प्रोफेशन हेल्प्स टू प्रोवाइड सर्विस टू द क्लाइंट, सर्विस टू द क्लाइंट, सर्विस टू द सोसाइटी. एम्प्लॉयमेंट, इट टॉक्स अबाउट लाइवलीहुड. ओके, फॉलोड बाय सर्टेनिटी ऑफ इनकम. क्या लगता है तुमको? सर्टन है इनकम? पैसे कमाना सर्टन है? यू नेवर नो बिजनेस में कब क्या हो जाए. तो सर्टेनिटी ऑफ इनकम इज लीस्ट. प्रोफेशन में क्वाइट अ बिट सर्टन इट इज कि भाई हमारे इतने 40 क्लाइंट है, इतने पैसे तो हर साल मिलने ही हमको. एंड एम्प्लॉयमेंट में इट इज द मोस्ट सर्टन. एम्प्लॉयमेंट में आपके हर महीने 1 या 2 या 5 तारीख तक तो आपको पैसे मिल ही जाने हैं. स्टेबिलिटी ऑफ द टेन्योर और ड्यूरेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेशन. स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर इज वेरी अनसर्टन. ठीक है, बिजनेस को आप कुछ नहीं बोल सकते. बड़े बड़े बिजनेस बंद हो गए. यू नो, कोई एग्जांपल दो जो बिजनेस बंद हो गया. सॉरी, कैमरास. जो कंपनीज कैमरास बनाती थी बंद हो गई. नोकिया बंद हो गई. यानी लाइक दे आर नॉट इनटू द मेन प्रोडक्ट टुडे. So guys, stability or tenure, durability of occupation is very uncertain in business. It is quite certain in profession. It is certain. भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इतने रिटर्न्स फाइल करोगे, इतने ऑडिट करोगे, क्लाइंटल बना हुआ है. और जॉब में भी इट्स वेरी सर्टेन. यार जॉब में मोस्टली थोड़ी सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू वाले लोग ही जॉब करते हैं. देन ट्रांसफर और ऑफ इंटरेस्ट और सक्सेशन. क्या हम लोग विरासत में बिजनेस आगे बढ़ा सकते हैं? बोलो. So it is possible. Succession in a next generation को ट्रांसफर करना. Then when it comes to this, is it possible? Profession? मैं डॉक्टर, मेरा बेटा भी डॉक्टर, जरूरी है डॉक्टर बनेगा वो? जरूरी है सीए बनेगा वो? नेक्स्ट जनरेशन? इट्स नॉट पॉसिबल. सबको अपनी अपनी डिग्री लेनी है. और जॉब भी नेक्स्ट जनरेशन तक नहीं होता. कुछ लोग कहेंगे कि गवर्नमेंट जॉब तो होती है वगैरह वगैरह. जो गवर्नमेंट जॉब की अगर हम लोग इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे अगर, तो फिर हम लोग क्यों चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहे हैं? ठीक है, हम लोग बैंकिंग पीओ की एग्जाम्स वगैरह दे और गवर्नमेंट जॉब ढूंढे. एनीवे, सो गाइस हम लोगों ने कंपेयर किया 3 चीजों को. कौन सी? डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस विजुअली इन कंपैरिजन विद अदर ऑक्यूपेशन. तो बिजनेस को हमने कंपेयर किया प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट से. आई होप देयर वाज क्वाइट अ लॉट एनलाइटनमेंट. अब आते हैं हम लोग बिजनेस पे. हमें बीसीके में बिजनेस पे ही कॉन्सेंट्रेट करना है. तो सबसे पहली अच्छी बात है बिजनेस की. बिजनेस इज अ जॉब क्रिएटर. ट्रू और फॉल्स? क्या कहते हो आप? Yes. यहां सबको जॉब करनी है. यहां सबको जॉब करनी है. तो गाइस बिजनेस इज अ जॉब क्रिएटर, नॉट अ जॉब सीकर. Business is an institution, is a source of sustenance directly to the business owners and employees and indirectly to all those who derive opportunity for it. यानी एक बिजनेस से काफी लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, प्लस सप्लायर्स को बिजनेस भी मिलेगा इनडायरेक्टली. This is a unique characteristics of business that separates it from other occupation. Yes, professionals in practice may also generate employment, but it is not in the same numbers as it is capable of generating. जो normal businesses है वो बहुत नंबर जनरेट करते हैं, बहुत. जैसे फॉर एग्जाम्पल टीसीएस. हैव यू हर्ड अबाउट टीसीएस?
टीसीएस क्या करती है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज क्या करती है कंपनी? सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर बनाती है. द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन टीसीएस इज 4.5 lakh. कितना? 4.5 lakh. दैट्स द नंबर. ठीक है. प्रोफेशन में भी जॉब दिए जाते हैं, लेकिन आप इतनी हाई लेवल की जॉब नहीं दे सकते जो कि आप बिजनेस में दे सकते हो. सो बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट, बिजनेस इज अ जॉब क्रिएटर एंड नॉट अ जॉब सीकर. दूसरा, जब आप बिजनेस करते हो तो आप वैल्यू एडिशन करते हो इकोनॉमी में, आप प्रोडक्टिविटी में एनहांस करते हो. सो प्रोवाइड्स मोमेंटम टू इकोनॉमिक ग्रोथ. व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ? इज द परसिस्टेंट इंक्रीज इन द कंट्रीज जीडीपी. हमारी कंट्री का जीडीपी बेटर करता है बिजनेस. द जीडीपी, इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड. आई होप जीडीपी के बारे में सबको पता है. Yes, sir. So total value of goods and services produced in the domestic territory of country during an accounting year. During एक accounting year के वक्त आपके domestic territory में क्या क्या productivity होती है, that is GDP. Okay, so guys, in economy को boost करने में काम आएगा क्या? इकोनॉमी को बूस्ट करने में काम आएगा क्या? बिजनेस. तो गाइस, हमारा सवाल जो हमने फर्स्ट डे पे पूछा था, राजू भैया जो क्या कर रहे हैं, लोग क्या बेच रहे हैं? वेजिटेबल्स, सब्जी. सो राजू भैया, इज ही एन एंटरप्रेन्योर गाइस? ये मेरा सवाल था. आई वुड लाइक टू कंटिन्यू माई क्वेश्चन. नो? रसिका Businessman. is a businessman? No, I don't know whether he's a businessman or not. Is he an entrepreneur is my question. No. Guys, the answer is correct. It's no. When you talk about they all are businessmen, this is an entrepreneur. Which kind of fish are you? Tell me. Which kind of fish are you? Jaldi. The yellow, the orange one or the blue one? Blue. ब्लू. ओहो. तो गाइस, ऐसे लोग, सब लोग बिजनेस करने वाले बहुत मिल जाएंगे तुमको, लेकिन स्टार्टअप करने वाले एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो आपको बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगे. देयर मस्ट बी सम फैक्टर विच एनेबल्स टू मोबिलाइज दिस फैक्टर्स. एंटरप्रेन्योर इज दैट वन फैक्टर जो दूसरे फैक्टर को मोबिलाइज करके उन्हें इनिशिएट करता है प्रोडक्टिविटी में. एक एंटरप्रेन्योर रिस्क बेयर करता है. एक एंटरप्रेन्योर रिस्क बेयर करता है. बिजनेस में इन जनरल फेलियर का रिस्क नहीं होता. इसमें क्या रे, सब्जी बिकेगी नहीं, क्या रे बोलो? बिकेगी नहीं है सब्जी? बिकेगी, लेट बिकेगी 10-15-20% खराब हो जाएगी सब्जी, लेकिन लॉस नहीं होगा. ये बिजनेस चलता जाता है, इसमें कोई रिस्क नहीं है. एंटरप्रेन्योरशिप is all about risk. An entrepreneur is an organizer. He is a risk taker. इसलिए he is different from just a mere businessman. All right. Entrepreneurs के beautiful examples मैं आपको देता हूं. Which brand is this? बोलो. Correct. चलो. Tell me who are the owners of Google. Any clue? Larry Page. Beautiful. The owners of Google are Larry Page and Sergey Brin. These are the owners of Google. तो ऐसे लोग होते हैं यार जिन्होंने, क्या गूगल ने सही में कुछ इंडिया को, पूरे वर्ल्ड को कुछ नया दिया था? Yes, sir. सर्च इंजन यार, हर चीज में. आज हम लोग टीचर को पूछने से पहले गूगल कर लेते हैं. करेक्ट है? these are the entrepreneurs. Who is he? Come on, tell me. Steve Jobs. Correct. He is Mr. Steve Jobs. He is Mr. Steve Jobs, the Apple guy. Who is he? Bill Gates. Bill Gates, the Microsoft guy. They are the entrepreneurs. जिन्होंने हर लैपटॉप पे विंडोज यूज हो रहा है, thanks to Bill Gates and his vision. They were the entrepreneurs. So guys, business में थर्ड एस्पेक्ट है, क्या बिजनेस में पैसा लगेगा? बोलो. Yes. क्या बिजनेस में पैसा लगेगा? यस. बिजनेस इज इन्वेस्टमेंट इंटेंसिव. इसमें आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा. बाय द वे, इन्वेस्टमेंट से याद आया, आप लोगों में इन्वेस्ट किया जा रहा है क्या? बताओ. Yes.
आप लोगों में इन्वेस्ट किया जा रहा है, बताओ। Yes. तो आप इन्वेस्टमेंट हो या एक्सपेंडिचर? बोलो जल्दी बोलो। आप इन्वेस्टमेंट हो या बैड डेट्स? क्या हो तुम? Investment. सर एकदम दुख भरा सवाल पूछ रहे हो आप। सो गाइज यस, इन्वेस्टमेंट। सो starting a business requires a sizable investment of funds in accommodation, plant and machinery, factory setup करने के लिए, plant and machinery, inventories रखने के लिए, अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो। in accounting, investment requirements are estimated as a sum of fixed assets and net current assets. Indeed, investments are necessary for tech upgradation, modernization and expansion. The size of investment usually varies with the scale of business. Oh, guys, can you quickly write down and let me know what are the various scales of business? All right, guys, scales of business done. Any clue? Small, medium, large. Perfect. Scales of business is a different concept. Forms of business is a different concept. कोई भी बिजनेस डे वन पे रिलायंस नहीं बनता। कोई भी बड़ा झाड़ एक दिन में नहीं बनता। पहले वो एक सीडलिंग होता है, फिर वो एक सैपलिंग बनता है, फिर देन इट बिकम्स ट्री, एंड देन इट बिकम्स अ वेरी 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 बिग ट्री। वैसे ही स्केल्स ऑफ बिजनेस की अगर हम लोग बात करें तो सबसे छोटा बिजनेस जिसमें बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट लगती है, क्या कहते हैं उसको? जल्दी बोलो। सबसे छोटा बिजनेस माइक्रो। Micro. माइक्रो से बड़ा, Micro. माइक्रो से बड़ा, Mini. माइक्रो से बड़ा मिनी, स्मॉल स्मॉल। व्हाट इज दिस रसिका? माइक्रो से बड़ा स्मॉल, स्मॉल से बड़ा मीडियम, एंड ऑफ कोर्स मीडियम से बड़ा लार्ज। सो गाइस, write this down. This may help you in the long run, not immediately but definitely. So guys, that's a scale. That's the scale of business. कितने बड़े पैमाने पे आप बिजनेस कर रहे हो। सर स्केल ऑफ बिजनेस कैसे पता चलता है कौन सा बिजनेस माइक्रो है? ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है ये। लाइक माइक्रो बिजनेस है तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज पे पता चलता है कि ये माइक्रो बिजनेस है या नहीं। इन्वेस्टमेंट कितना किया आपने प्लांट एंड मशीनरी पे? अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो तो 25 लाख तक आपने इन्वेस्ट किया मशीनरीज में, तो माइक्रो बिजनेस है। एम्प्लॉयज आपके 10 से कम है तो माइक्रो बिजनेस है। सर मशीनरी नहीं है, सर्विस देते हैं हम लोग, इक्विपमेंट है हमारे पास, तो 10 लाख तक का इन्वेस्टमेंट है तो माइक्रो बिजनेस है। 10 लाख के से ज्यादा के आपके इक्विपमेंट्स है, 25 लाख से ज्यादा के आपकी प्लांट एंड मशीनरी है, 10 से ज्यादा एम्प्लॉयज है आपके पास, तो ये स्मॉल बिजनेस में कवर हो जाएंगे। ओके, हर चीज के लिए हमारे पास पैरामीटर है, बट लेट्स नॉट गो इनटू दीज निटीज एंड ग्रिटीज, इट विल बी टू मच। ओके, सो गाइस चलो हम एक नया बिजनेस करते हैं, ये सेटअप करते हैं। व्हाट इज दिस गाइस, टेल मी। Furnaces. सॉरी, Thermal power plant. थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट का बिजनेस करते हैं। कैसा लगा आपको ये आइडिया? कैसा? नहीं, मजा नहीं आ रहा? ठीक है, बिजली नहीं बनाएंगे, चलो तेल बनाएंगे। तेल, पेट्रोल का बहुत माहौल है, बोलो नो। Yeah. अरे छोड़ो रे, रुको, जिसमें कंपटीशन ही नहीं वहां कंपटीशन देते हैं। लेट्स गो गेट इनटू दिस बिजनेस। व्हाट से गाइस? No. नो। ट्रैक कितनी है पता है? इंडियन रेलवेज के बिजनेस को अगर आप कंपीट करने की सोचोगे भी
तो ट्रैक्स कितनी की है पता है? ट्रैक्स कितनी है? 1,21,407 किलोमीटर की रेलवे ट्रैक है ऑल ओवर इंडिया। कहां से करेंगे कंपीट? चलो ठीक है, नहीं करते फिर, ठीक है ये बनाते हैं। अरेबियन सी में नेचुरल गैस एक्सट्रैक्शन का सेटअप करते हैं। क्या लगता है तुमको? कैसा लगा ये बिजनेस? कैसा लगा ये बिजनेस आइडिया? सर ये जो प्लांट आप दिखा रहे हो ना, ये बनाने के लिए लगेंगे तकरीबन 15 से 20 साल। तकरीबन 15 से 20 साल। क्या हमारे पेरेंट्स हमको अगले 20 साल हमारा बिजनेस सिर्फ रेडी होने के लिए अलाउ करेंगे? बताएं। No, no. बिजनेस का एक बड़ा इश्यू है कि इसमें इस बिजनेस को रेडी होने के लिए थोड़ा समय लगता है। इसी को कहते हैं जेस्टेशन। इसी को कहते हैं जेस्टेशन और गेस्टेशन, जो भी आपको ठीक लगे। किसी चीज को रेडी होने के लिए समय लगना, उसको कहते हैं गेस्टेशन पीरियड। और कोई बिजनेस का कोई भरोसा नहीं आजकल। पता चला एक नई वेव आ गई फिर से और सब लॉकडाउन हो गया। यू नेवर नो, बिजनेस में एक और लॉकडाउन और बिजनेस बंद। अनसर्टनिटी कैन बी कैन हिट अ बिजनेस लाइक वेरी 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 बैड। सो गाइस, बिजनेस का एक और इशू है जेस्टेशन एंड अनसर्टेनिटी। आपका बिजनेस रेडी भी हो गया, उसके बाद क्या वो पैसे कमाएगा? कुछ नहीं बोल सकते। यानी जेस्टेशन पीरियड भी हमने ले लिया और शायद हमने बाद में पैसे भी नहीं कमाए। रिस्क और अनसर्टेनिटी में एक इशू है। रिस्क को कैलकुलेट कर सकते हैं, अनसर्टेनिटी को कैलकुलेट नहीं कर सकते। एक और बड़ा इशू है ये। रिस्क में थोड़ा बहुत हम लोग अपना अंदाजा लगा भी सकते हैं, लेकिन अनसर्टेनिटी कैन नॉट बी कैलकुलेटेड एट ऑल। ये एक मेजर इशू है बिजनेस के साथ। देन सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज्ड एंड एफिशिएंसी ओरिएंटेड। कोई भी बिजनेस हो, इट शुड बी सिस्टमैटिक तरीके से होना चाहिए। जैसे हम लोग हमारी क्लास में एक प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो करेंगे। मैं क्लास में आता हूं, ठीक है, एक रैंडम बुक से एक रैंडम पेज खोल के कहता हूं आज पेज 57 पढ़ेंगे। ऐसे चलेगा क्या आपको? नहीं सर, प्रॉपरली चैप्टर वाइज पढ़ाओ, फिर एमसीक्यूज लो, फिर इंस्टाग्राम पे क्विज लो, हमको रेडी करो। आपको हर चीज सिस्टमैटिक चाहिए, ऑर्गेनाइज चाहिए और जल्दी चाहिए। डोंट वेस्ट आवर टाइम। 10 मिनट क्लास लेट चालू होगी तो चांचू करने लग जाते हैं स्टूडेंट्स। एम आई राइट? सो गाइस, एकदम मिनिमम टाइम में हमें करवा दो ये सारी चीजें। एफिशिएंसी ओरिएंटेड होनी चाहिए। अगर हमने कोई चीज वेस्ट कर दी, टाइम वेस्ट कर दिया, सिस्टमैटिज्म नहीं है, तो इसमें बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, टाइम का भी और रिसोर्सेस का भी। गाइस देखो ना कैसे उन्होंने प्रॉपरली हर चीज को लिंक कर दिया है। करेक्ट है? याद है? कुछ मिस हो रहा है इस डायग्राम में? बोलो। Outbound logistics. आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, पॉइंट ऑफ ओरिजिन से पॉइंट ऑफ कंजम्पशन तक हर चीज केटर करना। गाइस क्या है ये? दिस इज डायग्राम फॉर, टेल मी, दिस इज डायग्राम फॉर Supply chain. Supply chain. सप्लाई चेन मैनेजमेंट का डायग्राम है। हर चीज सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड है, तभी हम लोग आसानी से रॉ मटेरियल प्रोक्योर कर पाएंगे और सही समय में डिलीवर कर पाएंगे। सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज्ड एंड एफिशिएंसी ओरिएंटेड। एंड द लास्ट वन, जो भी बिजनेस है इट शुड फुलफिल सम पर्पस। क्या कहते हो? होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। Yes. जैसे तुम लोग ये क्लास अटेंड कर रहे हो यार, तो मुझे इकोनॉमिक्स बीसीके में 80 से ज्यादा मार्क्स लाने हैं। ये ऑब्जेक्टिविटी, ये पर्पस के साथ बैठोगे तो मार्क्स मिल जाएंगे। बस ऐसे ही बैठ गए, बस कुछ था नहीं करने को तो ये कर रहे हैं, इट विल नॉट वर्क। ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, पर्पस होना चाहिए। सो गाइस, these are the major attributes of a business. Business should be a job creator, not a job seeker. Provides momentum to the economic growth. जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। इसमें पैसे लगते हैं, इन्वेस्टमेंट लगता है, जेस्टेशन भी होता है, अनसर्टेनिटी होती है, सिस्टमैटिक होता है, ऑर्गेनाइज और एफिशिएंसी ओरिएंटेड एक्टिविटी होगी, एंड इट शुड बी ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड एंड पर्पसफुल। ऑलराइट, अब थोड़ा बिजनेस का एंगल, जब हमने ऑब्जेक्टिविटी की बात कर ली है तो थोड़ा बिजनेस का एंगल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। एक बिजनेस पे दूसरा बिजनेस डिपेंडेंट है क्या? Yes. Yes. ऑफ कोर्स, एक बिजनेस पे दूसरा बिजनेस डिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंस। तो आपको अपना बिजनेस भी चलाना है ताकि दूसरे बिजनेस भी जिंदा रहे। उसके बाद मल्टीपल स्टेक होल्डर्स। व्हाट डू मीन बाय द वर्ड स्टेक होल्डर्स? शेयर होल्डर मत बोलना,
जिसका इंटरेस्ट जिसका हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अच्छे होने में, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा होने में या बुरा होने में उसको दुख होगा या खुशी होगी। एक ऐसा ग्रुप, ऐसे लोग जिनको हमारे बिजनेस के आउटकम में इंटरेस्ट हो, उसको कहते हैं स्टेक होल्डर। सो गाइस मेक अ लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर कौन कौन हो सकते हैं? सो स्टेक होल्डर्स आर सप्लायर्स, हमारा बिजनेस बंद हो गया तो सप्लायर सप्लाई किसे करेगा? देन सोसाइटी, सोसाइटी को जॉब्स मिल जाती है तभी के तभी, ठीक है, सोसाइटी का फायदा भी होता है। हमारी फैक्ट्री अगर आपके गांव के पास है तो हम लोग वहां पे स्कूल सेटअप करते हैं, हम लोग वहां पे हॉस्पिटल सेटअप करते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है। क्रेडिटर्स, शेयर होल्डर्स, कस्टमर्स, ओनर्स, मैनेजर्स, एम्प्लॉइज, इन सब का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। ये सब है, ये सब है क्या? बिजनेस के लिए स्टेक होल्डर्स। करेक्ट। ओके, सो गाइज हमारे बिजनेस के साथ मल्टीपल स्टेक होल्डर जुड़े हुए हैं, सबका इंटरेस्ट फुलफिल करने की हमने कोशिश करनी चाहिए। तीसरा ऑब्जेक्टिव है मेकिंग मनी। क्या कहते हो? पैसे बनाने? ऑफ कोर्स पैसे बनाने यार, प्रॉफिट के लिए तो है। एट द एंड ऑफ द डे द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, द अल्टीमेट मोटिव इज प्रॉफिट। उसके बाद प्राइमेसी ऑफ द कस्टमर। ली आइकोका, फेमस marketing person, he used to work for Ford, if you have heard about Ford company. उन्होंने एक ही चीज बताई है, if you want to do good in business there's only one rule to it, satisfy the customer, satisfy the customer and satisfy the customer. प्राइमेसी ऑफ द कस्टमर, यानी कस्टमर को टॉप प्रायोरिटी दो। जैसे आप लोग पढ़ाई को अपनी टॉप प्रायोरिटी देते हो, ट्रू और फॉल्स? हाँ बोलो, झूठा ही सही, हाँ बोल दो। Primacy of the customer. So guys, give customer the top priority is one of the objectives and performance is the precursor of profit. आप perform अच्छा करोगे तो आपकी कंपनी profit भी बनाएगी। So guys, you give good performance. These are the major objectives of the business. Okay. Now, other business objectives. इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव तो मेजर है, जिसमें हम लोग प्रॉफिट बढ़ाना चाहेंगे, अपना मार्केट शेयर बढ़ाना चाहेंगे, सेल बढ़ाना चाहेंगे, आरओआई बढ़ाना चाहेंगे। तो आपको इस पे जरूर एमसीक्यू आएगा, आपको इस टॉपिक पे जरूर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, जरूर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि सेल कितना हुआ, ठीक है। तो ये कौन से, यानी आपको ऑप्शन दे देंगे एफिशिएंसी, या आपको ऑप्शन दे देंगे इंक्रीज इन द मार्केट शेयर, is covered under which objective? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज और लीगल ऑब्जेक्टिव। ऐसे 4 ऑप्शंस आपको दे देंगे। एमसीक्यू में क्वेश्चन ऐसे बनेगा, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सेल्स, प्रॉफिट, आरओआई, एफिशिएंसी, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड एंड मार्केट शेयर, ये सारी चीजें आर कवर्ड अंडर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, फॉलोड बाय ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव, सर्वाइवल, हेल्थ, ग्रोथ, डाइवर्सिफिकेशन, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे ग्रो करते हो, दैट इज कवर्ड अंडर ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव्स, फॉलोड बाय कम्युनिटी सर्विस, एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन, हेरिटेज कंजर्वेशन, कम्युनिटी सपोर्ट ड्यूरिंग कैलामिटीज एंड डिजास्टर। जैसे जब कोविड हुआ था तो काफी सारी कंपनीज ने फ्री सप्लाई किया था गुड्स का, नेसेसिटीज का। काफी सारी कंपनीज ने अपना मेन प्रोडक्ट बंद करके वेंटिलेटर्स बनाना चालू कर देते, जैसे महिंद्रा ने किया था। स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स द एम्प्लॉइज, इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, सप्लायर्स एंड कंपिटिटर्स, दीज आर ऑल द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ओके, बिल्कुल एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बनेगा। कम्युनिटी सपोर्ट कौन से ऑब्जेक्टिव के अंदर आता है? 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको। एंड गाइस, बिना पढ़े, बिना स्टिकी नोट बनाए, बिना इसको बार बार रिवाइज करे, आई डोंट थिंक मियर रीडिंग से आप ये सही परफेक्ट आंसर दे पाओगे। द चांसेस आर अ लिटिल लेस। एंड लीगल, एथिकल एंड एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव, लीगल, एथिकल एंड एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव। एग्जाम खत्म होने के बाद हम यहां जाना चाहते हैं, एम आई राइट? लेकिन हमने इतना पल्यूट कर दिया हर चीज कि ऐसी जगह बची ही नहीं है। हमने इतना पल्यूट कर दिया हर चीज की इतनी जगह बची ही नहीं है। सो गाइस,
हम लोग डिफॉरेस्टेशन करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन करते जा रहे हैं, ठीक है। ऐसी जगह बच गई अब बस घूमने के लिए। सो गाइस, वी वांट अ क्लीनर एनवायरनमेंट, वी वांट अ क्लीनर प्लैनेट, एंड दिस इज वेयर वी टॉक अबाउट एनवायरनमेंट। ऑफ कोर्स इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव तो है ही इंपॉर्टेंट, एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑल्सो गाइस, मान लेते हैं ये आपका बंगलो है, मान लेते हैं दिस इज योर बंगलो, ठीक है, और आपके बाजू में सारी स्लम एरिया है, सारी झोपड़पट्टी है, सही है क्या? वुड यू लाइक टू dwell एट सच अ प्लेस वेर आजू बाजू में सारा स्लमिश एरिया है, तुम्हारा बहुत बड़ा बंगलो है? बोलो नो। सबका साथ सबका विकास होना चाहिए कि नहीं? सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में देर आर 3 P's दैट आर कवर्ड टुगेदर। व्हाट आर दोस 3 P's? people, place. पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉफिट। वो प्लेस अलग है, वो अलग है, मार्केटिंग का है वो। पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉफिट, 3 P's। इन तीनों P's को कंजर्व करो, इन तीनों P's को सही तरीके से कंजर्व करो, तो जो डेवलपमेंट होगा उसको कहेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उनको कहेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मेक अ स्टिकी नोट ऑफ दिस फास्ट। Alright guys, done. I hope it's done. So guys, people, planet and profit कौन से ऑब्जेक्टिव को सर्व करता है? बोलो बोलो सर, लीगल, एथिकल एंड एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव को। रिस्पेक्ट फॉर लॉ इन द लेटर एंड स्पिरिट, फेयर प्रैक्टिसेस, ट्रांसपेरेंसी, ट्रूथफुलनेस, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, ग्रीन टेक्नोलॉजीज, ठीक है, डिस्पोजल, लोअर एमिशंस, कम कम पोल्यूशन करना, इफेक्टिव वेस्ट हैंडलिंग, डिस्पोजल, प्रिजर्वेशन ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल क्वालिटी। these are all you know एनवायरमेंटल, लीगल और एथिकल में कवर होते हैं। ओके, सो गाइस, अदर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनिक, सोशल एंड लीगल, एथिकल। जरूर एक क्वेश्चन इस पे जरूर से जरूर आएगा। देयर विल certainly be one question on this. All right, so guys, yeah, that's that. उसके बाद when we say that businesses में when we say that everyone is greedy, everyone is only trying to get entitled to this economic objective, सिर्फ economic objective serve करना चाहते हैं, I would like to let you know some corporates which are fulfilling their social responsibilities like no one. ASBA, India's first social enterprise focused on women. ये लोग प्रोडक्ट्स बनाते हैं, फूड ग्रेन्स एंड ऑल को रीपैकेजिंग करके बेचते हैं, और डेवलपमेंट ऑफ वुमेन इनका मेन फोकस है। प्रोडक्ट इनका मेन फोकस नहीं है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ वुमेन इन द ASBA एज अ कॉर्पोरेट। देन ITC होटल्स, okay, it is the greenest hotel chain in the world. So guys, when we talk about it's the greenest hotel chain in the world, कौन सा ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर रहा है ITC ग्रुप ऑफ होटल्स? Environment. Correct, environmental objectives, beautiful. Followed by lemon tree hotels. Lemon tree hotels providing gainful employment to persons with disability. यानी लेमन ट्री होटल्स में जो भी वेटर्स होते हैं, हेल्प होते हैं, सर्वर्स होते हैं, वो सारे ऐसे होते हैं या उनको
सुनाई नहीं देता है या उनको बोलते नहीं आता है या फिर कोई दूसरी डिसेबिलिटी होती है, उनको जॉब्स देते हैं एलिमेंट्री होटल्स. So, you know, this is something which is, very serves of good social objective. So guys, not everyone is running behind the economic objectives. Remember, there are other objectives to be served as well. Then हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रोजेक्ट शक्ति फॉर एम्पावरमेंट ऑफ रूरल वुमेन, ये लोग इनको बिना एडवांस के गुड्स दे देते हैं एंड दे कलेक्ट द मनी आफ्टर 2 months फॉर रूरल वुमेन अपलिफ्टमेंट एंड एम्पावरमेंट. Okay, so guys, yes, that's that. We have covered a fair bit of ground, and yeah, BC के इंट्रोडक्शन में आज के लिए इतना ही. In tomorrow's lecture, we shall study the forms of business, very important part, and then we'll call this chapter an end. But yeah, today's lecture we covered other objectives of the businesses. Then we studied the various attributes of business, that business is job creator, not a job seeker, provides momentum to economic growth, it is investment intensive, there's a gestation period, systematic, organized and efficiency oriented, objective oriented, purposeful it should be. This all things we have seen, or majorly we have seen today's major agenda was distinguishing characteristics of business versus employment versus profession. इन तीनों को हमने side by side compare किया. So guys, having read so much, shall we go for a quiz, guys? Come on. Shall we go for a quiz? Are you ready? ठीक है. जनरल रिमाइंडर, आज रात को 10 बजे इंस्टाग्राम पे जरूर क्विज रहेगा. बट या बिफोर दैट, आई गेस वी आर रेडी फॉर द क्विज. शैल वी गो फॉर इट? विल यू नेल इट? Will you nail it, guys? Come on, tell me. Yes. All right, here we go. Just a moment. All right, guys, here we go with the quiz. The very first question. This question is for you. Go. Salaries are a part of. Employment. No, you have to tick it. You've been given options, no? For the quiz. So in a quiz, we are giving you more options. Like we have given you 5 options. Exam में 4 ही आएंगे. Okay. Okay, guys, you did not read the question properly. Okay. Salaries are a part of business, then profession, then third option was employment. Fourth option is job, and fifth option is both C and D, guys. You did not read C and D. And this is where C exams are difficult. Devyani is the only student who has got it correct. Harsh, Abhishek, Sakura, Tiger Boy, Athar, Sebastian, Johnny, Earthman. Okay, these have all got it wrong. This happens in the C exam. We know the answer. It's just that you do not read the question well. Any which ways. Next question. Here we go. All right. So guys, we have got some more players now. Go, go, go. Next question. You don't have to answer it. You just have to tick it. Transfer of interest or succession is possible in business, profession, employment, all. This is a relatively easy question. Come on, make it fast. Jaldi, jaldi, jaldi.
It's possible in business. It's not possible in profession. It's not possible, of course, in employment. All तो answer है ही नहीं इसका. Most of the students have got it correct this time because you were cautious this time. Let's check out the leaderboard. Devyani is of course first. Abhishek is second. Rasika, Atharv, Harsh, Tiger Baby, Sakura, Homer, Neha, and Sebastian. Well done, guys. Next question. Here we go. Go, go, go. Come on. The logo of ICI is suggestive of dash expected from CAs. Care, focus, vigilance, all. Come on, answer it fast. 3 seconds left. 2, 1, go. The answer is vigilance. It's not all. Gone are those days जब all, none वगैरह ये सब सही options होते थे. The answer is vigilance. So Devyani's got it right. Abhishek, Rasika, Atharv, Harsh, Tiger Baby, and Neha. Sakura, Aradhana, and Sebastian has got it wrong. Okay, guys, well done. Devyani, keep it up. Abhishek, Rasika, Atharv, Harsh, Tiger Baby, you all have got a lot to catch up. Devyani को हराना है हमने. Let's see. Everyone supports the underdog. 2 more questions to go. You can still turn the tables around. Here we go, guys. Professionalism is often associated with greed, money, CA only, perfectionism. So guys, here we go. The answer is perfectionism. Okay, greed is also greed would have been correct had there been the word derogatory in the question. Professionals are derogatorily called as greedy. Okay, good. Let's check out the leaderboard. Rasika has got it wrong. Neha has got it right. Okay, Devyani, Abhishek, Atharva, Harsh, Tiger Baby, Neha, and Rasika. Johnny, Sakura, and Earthman are very down to earth. They don't want any points. Last question. Turn the tables around, guys. Come on. One last opportunity. Here we go. Go, go, go. Come on. Production represents dash side of economics. Supply, demand, both, none. Come on, it's easy. Production. Both वालों, both नहीं होते हैं. Supply, production represents supply, consumption represents, yeah, which side of economics? Consumption represents demand side and production represents supply side of economics. So guys, that's the final leaderboard position. And yeah, Devyani has not got any question wrong. Abhishek was the fastest in this question, I guess. Yeah, Devyani, well done. Many congratulations to you. Abhishek, well done. You are second, but you got one question wrong, if I'm not wrong. Atharva, Harsh, Tiger Baby, Rasika, Neha, Sakura, Om, and Johnny. This is the final leaderboard position. So guys, we are almost on the verge of completion of our very first chapter, BCK introduction. Yeah, we are not done with this chapter yet, but yeah, we will be completing this chapter by the next lecture. All right, guys, if you have any doubts whatsoever, you can always DM me on Instagram. Also, there's a quiz at 10 p.m. today. Make sure you be there. All right, guys, this is Pavan Gaukar signing off. See you in the next video. Till then, take care of yourself. Study well. Bye-bye, guys. Bye, sir. Thank you. Bye-bye, guys.